So my name is Avinash and I'll be doing this session for you next for around 35-40 minutes. And I will request a small thing from all of you. Just listen and participate. Is that okay? तो हमारा जो tools होंगे participation को ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा. क्या बोलते हो? क्योंकि अगर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा तो फिर ऐसा लगेगा मंडी बन गई यहाँ पे, है ना? तो इसलिए we'll use the gestures. What do you say? Is it okay? अच्छा, सर हिलाने में तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी. मोहित, yes, no? मोहित Galaxy 13, हाँ. Okay, good. So, as this session says mind matters, so I will start with a very, very simple and a very basic question to all of you. Most of you doing your masters, yes or no? Masters program? PGDPM? Yeah, okay. How many of you have certain dreams in life? Now you can raise your hand. या कुछ लोगों को लगता है भाई हो गया अब, ये एमबीए पहुंच गए बड़ी मुश्किल से, ये बहुत बड़ी बात होगी, अभी और कोई ड्रीम्स नहीं चाहिए. Yeah, how many of your dreams? Can I see the raise of hands? Some more dreams in life? Okay, fantastic, thank you. कुछ लोगों का हाथ इतना भारी कि उठ ही नहीं रहा है वो, मतलब वो हाथ बेचारा है उठ नहीं पा रहा है. It's like so heavy. Okay. So my question to you is, whatever your dreams you have, जो भी आपके सपने, whether it's about starting your own startup, it's about having your own company, it's about being an influencer on a YouTube, or creating a product, or being a CEO, or doing something remarkable in your life, whatever the dream is. My question is, what are the skills you'll be needing to really achieve them? आपको अपने ड्रीम को पाने के लिए आपको क्या लगता है, what are the skill sets you will be needing to fulfill them? Can you tell me that? Can you use the chat box and write it down? अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथों को यूज करना पड़ेगा थोड़ा लिखने के लिए. So if you can write it down, it will be easier for me to understand. What skill sets you think will help you to achieve your goals faster? क्या वो ऐसी चीजें जो अगर हमारे को मिल जाए तो हम अपने ड्रीम्स को और जल्दी और फास्टर अचीव कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, वेरी गुड. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ओके. कम्युनिकेशन स्किल्स, कूल एंड काम माइंड, पॉजिटिविटी, लीडरशिप, hard work, dedication, listening skill, guts to try new things, confidence, optimism, skill sets. You need to plan a schedule and work accordingly. Communication skills, positivity, humbleness towards what I have, problem solving, creativity, confidence, communication, concentration, smart, punctual, patience, communication, positivity, leadership. Fantastic. I just have to compliment all of you guys, because I conduct many sessions for many colleges and many universities, but this kind of participation I have really not got anywhere. So I really have to give it you really nicely participating. Thank you so much. Okay. I want to start my own business. I have to have a good knowledge of business and communication. Okay. But आप एक बड़ी interesting चीज नोट कर रहे हो. आप में से none of you even remotely said, I need my college degree to achieve my dreams and goals. पढ़ रहे हैं हम सब MBA, बहुत मेहनत करके अपना कैट, अपना जी, क्या क्या एग्जाम देके यहाँ पहुंचे हैं, और किसी को उस डिग्री से मतलब ही नहीं है. Isn't this incredible? None of you told me that I need my PGM degree to achieve my goals. But the answers which you gave me are very interesting, because that's really not necessary. हाँ, फिर क्यों कर रहे हो? अगर necessary नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? फंडे मारने के लिए बहुत अच्छी बात है. हाँ. Now the reason why I'm telling you this, because if we have realized something, the answers you gave me have very interesting thing in common. Passion, dedication, hard work, zeal, enthusiasm, creativity, all these things. इन सब चीजों का, if I'll ask you a small question, ये सब चीजों का origination क्या है? What is the source of all these things? Can you tell me? ये सारी चीजें जो भी आपने बोली, where do they all come from? Mind, fantastic. Ashish, super, brilliant. Education से तो I'm not sure. ये mind से आती है, yes or no? Isn't it?
इंस्टीट्यूट से होती तो फिर तो ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले ही लेते, है कि नहीं? या it is the source is your mind. Even the knowledge which you are saying comes from the where you are accumulating that in your mind. Yes or no? Observation is happening where? On the level of the mind. Where are you feeling that passion? ऐसा तो नहीं है पैशन हाथ में होता है भाई, आज मेरा हाथ बहुत पैशनेट है, आज मेरी इंटेस्टाइन्स में क्या फोकस है? It is the mind. Yes or no? Do you all agree? Am I making some sense? In same page with me? Okay. Now mind is something very 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 vague, at the same time very important. देखो हमने अभी तक जो समझा है, हम अपने ब्रेन को हमने समझा है, but mind is something really really interesting which we have not really paid a lot of attention on. Now अभी mind का क्या काम है? What does it really really do? This is something if we can decode and understand, I am telling you all the skills you have told me will be very effortless to achieve. Yeah? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने माइंड की, और अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज नोट करना, देखो अभी माइंड क्या कर रहा है. यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर वांटिंग टू लिसन टू मी, है कि नहीं? सुनने की कोशिश, बट बीच बीच में ना ऐसा मन कहीं तो जा रहा है, अरे यार नाश्ता नहीं किया यार अभी, कब तक चलेगा ये, नाश्ता भी करना है, अच्छा ठीक है, अरे यार मेरी नींद थोड़ी कम रहेगी, थोड़ा इसके बाद सेशन के बाद थोड़ा लेट जाऊंगा, थोड़ी कमर सीधी कर लूंगा, अच्छा भाई असाइनमेंट देनी थी मेरे को, रहेगी थी रात को. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? in between you are listening, but बीच बीच में कहीं ना कहीं मन जा रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा होता है? यस. अच्छा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारा माइंड हमारे को कितनी फनी चीजों के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो. देखो आपको याद है एक जमाना हुआ करता था जब हम ऑफ क्लासेस में बैठ के पढ़ाई करते थे, फिजिकल क्लासेस में, ऐसा भी एक जमाना था, याद है? वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, या जहां पे टीचर सामने खड़ा होता था, आप उन टीचर को देख पाते थे सामने, लाइव टेबल को टच कर पाते थे, है ना? ऐसा समय था एक. नाउ इमेजिन करो आपकी क्लास में देयर वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज कमिंग लेट, और योर क्लासमेट इज कमिंग लेट, और अब जब वो क्लास में घुसता है, व्हेन दैट पर्सन इज एंटरिंग द क्लास, आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर नजर ले जाते हो कि कौन आया है क्लास में, और फिर क्या करते हो? उसको बिल्कुल एकदम ऐसा रेडार की तरह उसके ऊपर पूरी नजरें टिकाते हो और देखते हो इसको सीट मिली कि नहीं मिली. हाँ मिल गई मिल गई मिल गई. देखा, किया आपने कभी ऐसा? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आपको जेन्युइनली चिंता है उसकी, कि उसने फीस भरी है, उसको क्लास में सीट मिलनी चाहिए. क्या फर्क पड़ रहा है टीचर क्या समझा के आगे पढ़ा रहा है, वो थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है. बट आपका फ्रेंड को क्लास में सीट मिलनी चाहिए, वो जरूरी है. यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? somebody's pen falls down, किसी का पेन गिर गया, आपको सबको पता है किसी का पेन गिरा है, मगर हम सब लोग चेक करना चाहते हैं, महंगा पेन तो नहीं गिरा होगा ना, कोई नुकसान ना हो जाए उस बेचारे का. टीचर पढ़ा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? Do you understand what I'm saying? Yes, no? Now, why does this happen? Because the mind kinds of sometimes it just goes in its own tangent. है कि नहीं? आप पढ़ रहे हो, अब your lecture is going on, very crucial lecture on marketing is going on. You want to listen to it. अपने क्लासेस अटेंड नहीं, आपको पता है लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है, मगर फिर में ऐसा खिड़की से बाहर निकल जाएगा मन, ला 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 ला. Yes? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm talking? And what does it do? Where does it really really go? It goes to these two interesting aspects, future and past. Yes or no? Agreed? Making some sense? फ्यूचर से क्या होता है? मेरा क्या होगा, what will happen to me. एंड पास्ट से क्या होता है? मेरा क्या हो चुका है. अरे यार जो सेकेंड ईयर के लोग हम बोल रहे हैं यार हमारे को इसी साल सेकेंड ईयर में आना था. ये किस टाइम पे हमने एडमिशन लिया था जो हमारे को अभी सेकेंड ईयर में मिलना था, पता नहीं क्या होगा नौकरी का. यस, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सडनली फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो, पास्ट के भी सोच रहे हो. मैंने उस टाइम क्यों एडमिशन लिया, एक साल ड्रॉप ले लेता, उससे पहले कर लेता, या फिर अरे यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा. डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? एंड दिस इज वेयर द stress peeps in your system. When we say no, we are very stressed out, what does it really mean? It means the mind is non-stop going to past and future, past and future. मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो चुका है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो चुका है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो चुका है. Agreed? Yes or no? And now when this starts happening on the level of the mind, what it does, it also affects the body on certain level.
इसीलिए आजकल द डिजीजेस आर कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक डिजीजेस. Anxiety, depression, what are they? They are just because of too much thinking of the mind going to past and future. Yeah, even cancer, it is said it is related to a lifestyle disease. Diabetes, it is not just because you're eating sugar uske karan problem hogi. It is the way our mind is going here and there. And 70% diseases unfortunately are psychosomatic. है कि नहीं? अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको. माइंड क्या करता है? आपका एग्जाम है, लेट्स से इमेजिन करते आज क्या डेट हो गई? आज हो गई है 23rd, नहीं 25th ना. हाँ, तो सपोज करिए आपका एक महीने के बाद एग्जाम डिक्लेयर होता है आज की आफ्टर 1 month यू हैव योर सेमेस्टर एग्जाम या वट एवर मिड टर्म वट एवर. तो आज आप बोलोगे एक महीना बहुत अच्छी बात है. यू विल नॉट इवन पे हीट टू इट. अग्रीड? यू विल से एक महीना पड़ा है यार, बहुत टाइम है. बट सडनली जब एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन उससे एक रात पहले सडनली कुछ होना हो जाएगा सिस्टम में. अरे यार कल एग्जाम है यार पढ़ना पड़ेगा. क्यों पहले क्यों नहीं पढ़ा? एंड यू विल स्टार्ट रियली स्टडिंग. एंड इफ यू विल नोटिस इन दैट वन नाइट बिफोर एन एग्जाम योर कॉन्सेंट्रेशन शूट्स अप. हैव यू नोटिस दिस? या स्पेशली सुबह जब एग्जाम से बाहर आप कॉडी रोड में खड़े होते हो, अरे बताना क्या पढ़ा तूने यार, मेरे को दिखाना. और कोई इंसान बता रहे तूने पिक्चर देखी, तू यार तेरी भाड़ में पिक्चर ही पढ़ने में मुझे. Do you realize your memory becomes like a photographic memory? आप हर एक चीज की फोटो खींचते हो. Yes, बट ऐसा फोकस एक महीना पहले नहीं हो पाता है. Yes or no? बट एक महीना पहले मन रिलैक्स्ड होता है, मगर एक घंटा पहले मन रिलैक्स नहीं होता है. तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोकस और रिलैक्सेशन का. Isn't it? फिर होता क्या, गड़बड़ कहां पे होता है जब दोनों चीजें साथ में नहीं होती है? यू आर रियली अटेम्प्टिंग एन एग्जाम, आपको आंसर याद भी है, आपको आंसर की ज्योग्राफी भी पता है. यू नो ओके दिस पार्ट ऑफ द बुक द आंसर इज, आपको पेज नंबर दिखता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड का पेज दिखता है, डायग्राम्स दिखते हैं, फॉन्ट दिखता है. बट जहां पे वो आंसर है ना, उसके ऊपर और नीचे की चीज दिखती है, वो आंसर नहीं दिखता है. कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? एंड यू आर रियली बैंगिंग द फ्लोर. अरे यार वो थोड़ा नीचे आना, थोड़ा नीचे होना, थोड़ा नीचे. हैज इट हैपेंड टू यू समटाइम? और वो कुछ भी मेहनत कर लो नहीं आता, फिर अगले दिन आप जब चिल मार रहे होते हो, और आ गया, मगर फायदा क्या उस चीज का? Yes, because when we really work only either with focus or only either with relaxation, it doesn't really work out. But if you'll notice, if you'll see your favorite movies or you'll watch IPL these days, if you're an ardent lover of cricket, do you see both things happen simultaneously? Focus भी होता है, relaxation भी होता है कि नहीं? जब आप थिएटर में जाते हो या जाते थे या जाओगे या nobody on the counter tells you बेटा आपने 250 रुपए की 300 रुपए की टिकट खरीदी है, ध्यान से देखना पिक्चर को, एकदम कंसंट्रेशन से मन लगा के रखना पिक्चर में पूरा. हाँ, इधर उधर मन को मत ले जाना. या कोई ऐसा बोलता है शांत मन से देखना बेटा पिक्चर, स्ट्रेस मत हो जाना. ऐसा हुआ है कभी? because the moment you will enter in a movie you will be focused, you will be relaxed. Making sense? Yes, no? Now this is where you need to really address that हमारे को ये टेंडेंसी आनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कैसे फोकस करें, अपनी मर्जी से कैसे रिलैक्स करें. और अगर वो करना आ गया, योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स विल ड्रास्टिकली चेंज. हम जब फोकस की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? जो मैं कर रहा हूं उस पर आई कैन बी राइट देयर विद फोकस एंड विद रिलैक्सेशन. और यही कारण होता है कभी कभी द थिंग्स विच यू कैन फिनिश इजिली इन हाफ एन आवर यू टेक 2 hours sometimes. Has it happened to you? Maybe on a presentation, maybe while you're studying. Why? Because you cannot really focus there full time whenever you're there. And this is very important, understanding how to handle this. तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे सब लोग मेरे साथ. अगर आपके हाथ में फोन है तो फोन को रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोनों हाथों की आवश्यकता लगेगी मेरे को. Okay? So what you need to do is you need to clap with me, but you need to clap in a certain manner. How will you clap? So suppose this is my level is hand, this is level 0. तो यहां पे आप बिल्कुल धीरे धीरे क्लैप करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे. और जैसे जैसे मेरा हाथ ऊपर जाता जाएगा आपकी क्लैप की स्पीड बढ़ती जाएगी. रेडी? हाथ नीचे आएगा स्पीड कम, हाथ ऊपर जाएगा स्पीड तेज. रेडी हैं सब लोग? अगर आप वीडियो ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा कौन कितनी तालियां बजा रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके,
स्टार्ट करो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल स्लोमो मोड। याद है स्लोमो कैसे होता है, एकदम ऐसा। आप धीरे 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 थोड़ा थोड़ा नॉर्मल मोड पे आ जाओ, थोड़ा नॉर्मल पे आ जाओ। ध्यान देना मेरा हाथ कहां जा रहा है। हाँ, हाथ पे ध्यान देना। हाथ अगर इधर उधर ध्यान ले जाओगे तो हाथ कहीं पे भी जा सकता है। वापस नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड। अभी थोड़ा हम टाइम लैप्स पे चले जाते हैं, टाइम लैप्स, टाइम लैप्स। थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, मतलब आपके घर वालों को पता चलना चाहिए कि आप कुछ लेक्चर अटेंड कर रहे हो। कम ऑन, लिटिल फास्ट एंड अगेन स्लोमो, 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 एकदम ऐसा स्लोमो, स्लोमो। थोड़ा और, 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 थोड़ा, 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 थोड़ा। ओके, एंड लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, लिटिल। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। आपने नोट किया, डिड यू रियलाइज वन थिंग, दैट व्हाइल यू आर क्लैपिंग, आप अलग अलग तरीके से, कुछ लोग ऐसे क्लैप कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, बट जैसे भी आप क्लैप कर रहे थे, क्लैप करते करते आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल बड़ी हो गई होगी। डिड यू रियलाइज दिस? अभी आप नोट करो, आपके चेहरे पे स्माइल थोड़ी सी बड़ी हो गई है। You're like, but you are playing the most stupid game on this planet Earth. Just to let you know. But you are still smiling like, अरे वाह क्या बात है, कमाल है, हाथ ऊपर लेके नीचे जा रहा है. Yes. Now the reason you could smile more was because your mind came to this moment, isn't it? You were not thinking of the past, you were not thinking of the future, isn't it? You are just thinking कि ये हाथ कहाँ जा रहा है भाई, ये हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे स्लोमो में जाना है, टाइम लैप्स में जाना है, isn't it? Yes or no? Now, now this is why it is called as present. It's a gift which is given to you. बट आप ऐसा तो नहीं कर सकते, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं प्लेसमेंट है, और कंपनी बहुत अच्छी कंपनी आ रही है, और आपका मन यहां वहां भाग रहा है, क्या याद है क्या याद नहीं मुझे, तो आप अपने आप ऐसे जो इंटरव्यूअर है उसको बोल सकते हो, सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, सर अपना जरा हाथ आगे रख दो और थोड़ा ऊपर और नीचे लेके जाओ, फिर मेरा माइंड प्रेजेंट में आ जाएगा, तो मैं फिर अच्छे से इंटरव्यू दे पाऊंगा। तो इंटरव्यू लगा बहुत अच्छी बात है ना? You cannot do this, right? You cannot do this for your exams every time. It's nice way to bring the mind to the present, but you cannot do this 24/7, isn't it? Now, how do we really bring the mind to the present? This is a very important skill we need to understand. तो किसका सहारा लेते हैं हम? तो चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. It is said the mind cannot be handled on the level of the mind. So what does it mean? Suppose, can you close your eyes for 10 seconds? We'll do a small activity. 10 seconds, okay? Now for 10 seconds, you don't have to think about a green monkey. आपको एक हरे बंदर के बारे में नहीं सोचना है. आंखें बंद ही रखो. अब हरे बंदर के बारे में तो बिल्कुल सोचना नहीं, मगर साथ साथ उस हरे बंदर को ये नहीं इमेजिन करना कि वो पेड़ पे लटका हुआ है. और कुछ भी हो जाए, वो हरा बंदर जो एक छोटी बॉल के साथ खेल रहा है और जो पेड़ पे लटका है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं इमेजिन करना है. धीरे से आंखें खोल लो. Okay. Now, what were you thinking? हरा बंदर, बॉल, पेड़. Yes or no? Do you realize what I'm saying? तो कितना भी हम मन के लेवल पे बोले मुझे ये नहीं करना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, बट इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? उसी के बारे में ही सोच रहे हो. मुझे अपनी एक्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बट ये बोलते ही आप क्या कर रहे हो? एक्स 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 एक्स. Do you realize what I'm saying? So mind cannot be handled on the level of the mind. What you need is a tool which can really allow your mind to bring it to the present. What is that tool? This tool which we all do. What we need to do is, it is called as breath. Do you all breathe? आप सब लोग सांस ले रहे हो? कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा प्राणी है यहाँ पे जो नहीं ले रहा है सांस? अगर नहीं है ऐसा तो फिर मेरे को थोड़ी चिंता हो जाएगी कि ऐसे भी प्राणी एग्जिस्ट करते हैं. ओके, नाउ डू यू रियलाइज व्हाइल यू आर ब्रीदिंग, व्हेन यू आर ब्रीदिंग, इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न टू इट. बट मैं आपसे पूछूंगा, आपने लास्ट टाइम अपनी ब्रेथ को कभी ध्यान से अवेयरनेस के साथ सांस ली थी? याद है आपको ऐसा टाइम व्हेन यू आर रियली रियली अवेयर दैट आई एम ब्रीदिंग? डू यू रिमेंबर द टाइम? Yesterday, occasionally. कब याद आता है पता है? मैं बताता हूं. Either you are really running for your life from a dog at night, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, या कोई ऊंची बिल्डिंग में रहते हो, लिफ्ट खराब हो गई है,
आपका 8th 9th फ्लोर पे घर है, लिफ्ट नहीं चल रही, 4th फ्लोर पे आके याद आता है या और when or you have an asthma or if you're doing any workout, meditation, yoga, but otherwise we neglect our breath left, right and center. Yes or no? Isn't it? Now why it is very very vital for your breath? Now I'll give you a very interesting example. आप में से सपोज करो किसको लेते हैं, let's take one person. किसका एग्जाम्पल लेते हैं? let's take Puneet. Puneet is our dear friend, also a faculty. Now suppose करो पुनीत अपने कॉलेज जाता है और हमने देख लिया ना पुनीत को, कैन यू सी द पुनीत? या ओके. ना पुनीत कॉलेज जाता है और लॉकडाउन के बाद, और सडनली एक क्लास में एक नया चेहरा आ गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नया चेहरा, और आप सब, पुनीत बोलता है यार ये चेहरा तो बहुत ही अच्छा है, क्या बात है, ये लॉकडाउन के टाइम पे ऐसी कृपा क्या हो गई भाई, मतलब कि क्लास का फॉर्मेट ही चेंज हो गया. और पुनीत को चेहरा बहुत पसंद आ जाता है. पुनीत इज लाइक वाओ मैन, दिस फेस इज वेरी नाइस, वेरी कूल. और अब हर दिन पुनीत उस चेहरे को देखता है तो पुनीत को लगता है कि यार यही वो चेहरा है, यही वो है, मेरे सपनों का राजकुमार, मेरे सपनों की राजकुमारी, डा 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 डा. और अब पुनीत एक दिन डिसाइड करता है कि आज तो मुझे बात करनी है, आज तो कुछ भी हो. बट क्या होता है, उस दिन चेहरा आता है और पुनीत अकेला क्लास में बैठा हुआ है और वो चेहरा भी क्लास में आ जाता है और कोई भी नहीं है क्लास में. और पुनीत थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, क्या बात है, क्लास भी अकेली, मैं भी अकेला, चेहरा भी. तो चेहरा आके पुनीत को बोलता है मेरे को ना कुछ एक पर्सनल, आई नीड टू रियली टॉक समथिंग पर्सनल टू यू. अब पुनीत को लगता है क्या बात है, जितने मैंने व्रत रखे हैं, जितने मैंने डाइटिंग की है, जितने मैंने, मेरी मम्मी ने जितने व्रत रखे हैं, वो सबका पुण्य मुझे ही मिलने वाला है. तो पुनीत को बड़ा एक्साइट हो जाता है. तो क्या है बोलता है चेहरा, है बोलता है पुनीत, यू नो योर बेस्ट फ्रेंड, कैन आई गेट हिज नंबर, आई रियली लाइक दैट पर्सन. नाउ कुछ लोग बोल रहे हैं भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट इफ रियली दिस हैपेंस टू यू, नाउ टेल मी हाउ विल पुनीत फील इन दैट सिचुएशन? कैन यू टेल मी? विल ही फील वाओ कितना अच्छा है, बहुत मेरे दोस्त का भला हो जाए, है ना, मेरा अपना सच्चा दोस्त है ना, ऐसा होगा? कोई बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी बात सुन के, मन बहुत शांत, ऐसा होगा? पुनीत विल गेट एंग्री, ही विल गेट इरिटेटेड, ही विल हैव जेलसी, ही वुड वांट टू ब्रेक बोथ पीपल्स फेसेस. Isn't it? Yes or no? But do you notice when these emotions come to us, जब ये ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमारे को कभी सिखाया नहीं गया कि उस टाइम पे क्या करना है. क्योंकि आपकी मम्मी ने जब भी बोला है बेटा गुस्सा मत करो, मम्मी ने खुद गुस्सा होकर ही बोला है बेटा गुस्सा मत करो तुम. और आप बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मम्मी भी गुस्सा है और बोल रही गुस्सा मत करो. दिस इज वेरी फनी. यस और नो? डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? घर वाले बोलते हैं अरे तुम्हारा मन कहां पे लगा हुआ है, तो अच्छा मुझे नहीं आता मन लगाना, बट आप बता दो कैसे लगाते मन. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जेलसी नहीं करनी चाहिए, फ्रीडम, ग्रीड नहीं होनी चाहिए, बट ये सुनने में बहुत अच्छी बात है, बट वो कैसे, जब वो उस टाइम पे हिट करती है लाइफ में, उस टाइम पे क्या किया जाए? यस और नो? और सपोज करो ये पुनीत के साथ भगवान ना करे ऐसा हो जाए उसके मेन क्रिटिकल एग्जाम से पहले, क्या होगा बताओ उस एग्जाम का? क्या एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं पहुंच पाएगा पुनीत. Isn't it? Do you see what I'm saying? छोटी सी बात कैसे इफेक्ट कर. इसीलिए ब्रेथ का हमारे इमोशंस के साथ बहुत पावरफुल कनेक्शन है. आपने नोट किया जब आप गुस्सा होते हो, when you are angry, your breath also changes. It becomes short and fast. Yes or no? Do you agree? When you are very very sad, the breath becomes very deep. और जब आप बहुत खुश होते हो, the breath becomes very light. सही है सब कुछ. Isn't it? Yes, no? Now this is where अभी तक हमने क्या किया? We have been so many times been driven by our emotions, and because of the emotions we get carried away so much, instead of responding we react, और उसके कारण then we regret so many times our decisions later. अरे यार नहीं करना चाहिए था गुस्सा उस टाइम पे, unnecessary. Yes or no? Do you realize what I am saying? But if you understand breath, if you can know how to play with your breath, you can really handle your emotions on your own will. अभी जो हमारे को इमोशंस ऐसा गाइड करते हैं, गुस्सा चल ऐसे बिहेव कर, रिग्रेट ऐसे बिहेव कर, डिप्रेशन ऐसा बिहेव कर, यू कैन रियली टर्न इट अराउंड. यू कैन डिसाइड विद योर ओन ब्रेथ. या बिकॉज ब्रेथ इज समथिंग थ्रू विच 80% ऑफ आवर बॉडी टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड. मेकिंग सम सेंस? और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज
आप बोलते हैं अरे ऐसी जरूरत नहीं, बट आपको पता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता है हम कितने सारे नेगेटिव इमोशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अंदर बिना टोल गेट के ले लेते हैं। टैक्स भी नहीं देता कोई इमोशन अंदर आने के टाइम पे। गुस्सा आ गया, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज राइट नाउ आपके किसी क्लोज फ्रेंड को अभी कोविड हो गया, डू यू सी यू विल ऑटोमेटिकली फील लिटिल सैड, इजंट इट? अ लिटिल सेंस ऑफ फियर विल कम, यस और नो? आपने घर के बाहर किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया और यार लग तो नहीं होगी इंसान, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एंड नेगेटिव इमोशन हैज जस्ट सेटल्ड इन योर सिस्टम, बट डू वी नो अ वे वेयर वी कैन रियली लेट इट आउट? This is something we need to all think upon, that how do we let go of this negative emotions which just keep coming in our mind? Making some sense? Am I making some sense? Yes, no? Good. And then one more very interesting thing which we all need to do is taking decisions. Do you think so decision making is very, very important? Yes, no? Okay. Now अब हम किसका एग्जाम्पल लें? Let's take whom should we take? पुलकित को लेते हैं, पुलकित. Here is Pulkit to you. Yeah. Okay. Now imagine करो पुलकित आता है वापस कॉलेज खुल जाता है, and the most beautiful, the same face, remember the same face, the most happening, amazing, beautiful, sundar, handsome, and just Puneet is entering the college और वो चेहरा भागते भागते पुनीत की तरफ आता है और पुनीत की आंखों में आंखें डालते बोलता है, says पुनीत, you know what, I really love you. पुलकित, I really love you. अब पुलकित क्या करेगा? पुलकित ध्यान दाएं बाएं देखेगा, बोले क्या हो गया पैनिक में भाई, मतलब व्हाट हैज हैपेंड? पुलकित विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट, इज लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग? यस नो? एंड पुलकित से रियली, आर यू श्योर? बट इफ somebody comes to him and says Pulkit, I hate you, Pulkit will say really, how much? कितना? नहीं, एक बार बता दो यार, डिस्कस कर ही लेते हैं, आज तो डिसाइड हो ही जाए, चलो तुम भी एक लिस्ट बनाओ, मैं भी एक लिस्ट बनाता हूं, फिर देखते हैं कौन किसको नफरत ज्यादा करता है. लेट्स गो ऑन अ कप ऑफ कॉफी एंड डिस्कस हेट्रेड. ऐसा होगा? और अगर हम नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वेस्टर्न यूपी, और अगर ऐसी घटना हमारे साथ होती, कोई आके हमारे को बोलता है आई हेट यू, आप बोलोगे तू, एंड देन वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स विल कम आउट, amazing, precious words, and then you say, I hate your entire dynasty, get lost. Yes or no? Making sense? Isn't it? Now, do you realize what I'm saying? We doubt the love, but we never doubt the hatred. आपने देखा होगा, आपने आपका भी अनुभव होगा, ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनका आपस के बीच में बहुत प्यार बना होता है ना, लाइक पीपल हु आर रियली क्लोज टुगेदर, एक साथ कॉफी पीने जाते हैं, थिएटर एक साथ जाते हैं ना, बहुत सारी जगह. अगर आप उनकी कॉन्वर्सेशन सुनोगे ना, लाइक इफ यू आर बाय चांस सिटिंग नेक्स्ट टू देम इन अ कैफे बाय मिस्टेक, you will be thrilled by their conversation. Thrilled, it's like a free entertainment. I really love you. No, how much? No, what can you do for me? No, I really love you. No, prove your love. वो non-stop क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट चलता रहता है, कितना, नहीं तूने कितना, नहीं मैंने कितना. Have you noticed what I'm saying? Because love is again and again doubted. Hatred instantly believed in. और ये हम लाइफ में कहां पे रिफ्लेक्ट होता है? जो चीजें हम कर सकते हैं उस पे हम डाउट करते हैं, और जो चीजें नहीं कर सकते उस पे पूरा विश्वास होता है. Isn't it? देखो आप कितनी बारी आपने बोला है कि इस बारी मैं अपनी पूरे बैच का, पूरी यूनिवर्सिटी में रैंक 1 लाने वाला हूं, टॉप करने वाला हूं. सब लोग मुस्कुरा रहे, बोल रहे कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कौन बोलता है? या बट जिस दिन एग्जाम खराब हो गया, यू आर काइंड ऑफ, यू नॉट, आज तो गया भाई, आज तो भगवान भी नहीं बचा सकता पेपर को. Do you see what I'm saying? The surety on failure is much higher than the surety on success. Things which you can do, you doubt them. Things which you cannot do, you believe in them. And this is where the direction of achieving our goals kind of goes little haywire. Because जो चीजें कर सकते हो उसी पे अगर डाउट करते रहोगे, और जो नहीं कर सकते उस पे विश्वास करोगे, तो मुझे बताओ क्या होगा? है कि नहीं? Am I making some sense? So this is another way that, you know, how do we take decisions, and these all things reflects on the level of the mind. अब ये तो बातें हो गई सुनने की, बट अब एक हम इंटरेस्टिंग चीज करने वाले which will really allow you to
वन, ये तो थ्योरी हो गई, बट समथिंग विच वी कैन सी कि हाउ डज इट रियली रियली वर्क. तो इन सब का एक बहुत ही पावरफुल टूल टू एड्रेस दिस इज कॉल्ड इज मेडिटेशन. आप में से कितने लोग ने मेडिटेशन कभी ना कभी की है जिंदगी में? अच्छा आप में, अच्छा सॉरी, अच्छा आप में से कितने लोग रेगुलरली हर दिन मेडिटेशन करते हो? हाँ, ओके, वेरी गुड. तो हम सबने कहीं ना कहीं हाथ पैर तो मारा ही है कभी ना कभी. चलो यूट्यूब कर लेते हैं, देखते हैं, हो सकता है हम भी एकदम, हमारे चेहरे पे भी ऐसा तेज आ जाएगा, सर के पीछे हेलो आ जाएगा, है कि नहीं, हम भी बड़े इवॉल्व हो जाएंगे. बट फिर क्या होता है, आंख बंद करते हैं और दुनिया जहान के विचार आते हैं, बोला भाई कुछ नहीं हो रहा है, बकवास है सब चीजें, मेरे बस की नहीं है भाई. आई एम नॉट मेंट फॉर मेडिटेशन. हैव यू सीन दिस डायलॉग? आई एम अ पर्सन हु इज वेरी वेरी रेस्टलेस, आई कैन नॉट सिट. या, so let's see what happens if we meditate, and let's see what can happen. Are you interested in doing a small meditation for around 7 to 10 minutes? What do you say? And let's then see, does it really work or it's just a farce? Okay, तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे. व्हाट नंबर वन, थोड़ा सा पहले थोड़ा बॉडी को ना हल्का सा हिला लेते हैं. लेट्स शेक आवर बॉडीज. थोड़ा सा हाथों को, अच्छा कुछ लोग इतने स्लो में हाथ हिला रहे हैं ना ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा है जीवन भर कभी खाना ही नहीं दिया इन लोगों को. थोड़ा जोर से हिलाओ. कम ऑन, यू आर डूइंग लाइक यू आर ऑल यंग मैन. अच्छा अपनी अपने पेट, कमर, कमरे दोनों को हिलाओ. जहां पे भी बैठे हो थोड़ा हिलाओ. थोड़ा कंधों को हिलाओ. थोड़ा हाथों को ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ. हाँ, वेरी गुड. ओके, गुड गुड गुड. कैन यू फील लिटिल zing 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 in your body? Nice. Now, so two rules in meditation. Rule number one, you need to keep your eyes closed. And rule number two, अभी सुन लो पहले, and sit as comfortably as possible. जितना आराम से बैठ सकते हो, टेक लगा के बैठना है, बेड पे बैठना है. ये मत सोचना कि भाई मुझे रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और एकदम ऐसे सर सीधा और चेहरे पे. आराम से बैठ जाओ, ठीक है. सिट कंफर्टेबली. अगर टांगे क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते हो, टांगे स्ट्रेच करके बैठ जाओ, बट बैठे रहो. ये पहला रूल. दूसरा रूल क्या करना है, एफर्टलेसली आपको जो जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वो सुनना है, लड़ना नहीं है उनके साथ. अरे ये क्या बोल दिया इसने, अरे सपोज सपोज हमने बोला थिंक ऑफ एन एप्पल, अरे मगर ग्रीन की रेड वो तो बताया नहीं. अच्छा मगर ये तो एप्पल बोल रहे हैं, मगर मैं सोच पा रहा हूँ ऑरेंज, ओ मेरे बस की नहीं है. तो अगर एप्पल आ रहा है फैंटास्टिक, ऑरेंज आ रहा है फैंटास्टिक, पहाड़ आ रहा है तो भी अच्छा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डोंट फाइट विद योर थॉट्स. वॉट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन. आर यू ऑल रेडी? So I'll invite Saurabh to conduct a beautiful meditation for you around for 10 minutes. ठीक है, ready? Saurabh, over to you. So let's sit comfortably and easily. आंखें बंद कर ले. Let's close our eyes. Take a deep breath in. गहरी सांस लें और जाने दें. एक और गहरी सांस लें और उसे भी जाने दें. Now become aware of all the noises in your environment. आपके वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हूं उन पर ध्यान दें. पंखे की आवाज, एसी की आवाज, the noise of people talking. Accept all the noises. सभी आवाजों को स्वीकार कर लें. You are in harmony with your environment. तो अपने वातावरण के प्रति समता में है. Now take attention to your left foot. अपने बाएं पांव पर ध्यान ले जाएं. Relax your left foot.
left thigh and knee, the calf muscles, and your whole left leg. Is resting now. पूरा बायां पांव अभी विश्राम कर रहा है. Take attention. Your right foot. Right calf muscles. Right knee. Right thigh. And your whole right leg. पूरा दाहिना पांव विश्राम करें. Give it the complete rest. Take attention to your genitals, stomach region. Breathe in and breathe out. Every ingoing breath energizes your body, and every outgoing breath relaxes your body. Become aware of this phenomenon. हर अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर जाने वाली सांस आपको पूर्ण विश्राम दे रही है, giving you total rest. Now take attention to your chest. छाती पर ध्यान ले जाएं. Take attention to your right hand. दाहिना हाथ. Your right elbow. Your right bicep, tricep. Relax your whole right hand. पूरे दाहिने हाथ को विश्राम दें. Take attention to your left hand. Left elbow. Left bicep and triceps. Relax your left hand completely. Take attention to your shoulders. कंधों पर ध्यान ले जाएं. Loosen up your shoulders. Breathe in with a smile. And breathe out with a smile. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें. Take attention to your neck, face. Relax your facial muscles. When we smile, the facial muscles relax.
Breathe in again and breathe out. Take attention the top of your head. सिर की चोटी पर ध्यान ले जाए. The top of your head. Your body. Relax your whole body. पूरे शरीर को विश्राम करने दें. Your body is a beautiful gift from nature, from God. Honor and respect your body. शरीर को सम्मान करें. आपका शरीर भगवान की दी हुई एक अद्भुत देन है. Breathe in and breathe out. Now, become aware of your thoughts. अपने विचारों पर ध्यान ले जाएं. Good thoughts or bad thoughts, just let them be. उन्हें विश्राम करने दें. Don't fight with them, just let them be. Thoughts are like the passing clouds. They come and they go. Now, breathe in, fill your lungs. Breathing out, empty your lungs. Now, become aware of your emotions, feelings and emotions, if there are any. आपके मन में कोई भी भावनाएं हो, उसके प्रति सजग हो जाएं. Become aware and just let them be. Don't fight with them. Accept all your feelings right this moment. Breathe in and breathe out. Again, become aware of your feelings and emotions. अपने भावनाओं पे फिर से ध्यान ले जाएं. Breathe in again and breathe out. Become aware of your thoughts. अपने विचारों के प्रति ध्यान ले जाएं. अगर मन में कुछ विचार हो अभी, उस पर ध्यान ले जाएं. Breathe in and breathe out. Become aware of your body and surroundings. अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. Become aware
You may move your legs, move your hands, become aware. Breathe in again and breathe out. Slowly and gradually, taking your own time, अपना समय लेते हुए, whenever you feel complete, you may धीरे से आंखें खोल सकते हैं. You may gently open your eyes. धीरे से आंखें खोल लें. How are you feeling? कैसा लग रहा है आप लोगों को? You can write it in the chat box that how are you feeling now? Good, fresh, good, relaxed, good, relaxed, very calm, soothing, fresh, good, relaxed, nice, relaxed and awesome, calm and fresh, open, very calm, relaxed, fantastic. Now, can you make a difference in how your mind was at around 10 a.m. and how it is now? Can you see a difference in that? जब हमने टॉक शुरू की थी से लेके अब कैसा मन लग रहा है? कुछ अंतर लग रहा है? Can you see any difference on that level? Yes or no? This is something which is something your mind craves for it. And we don't do this to our mind. It's a sin. है कि नहीं? आपको थोड़ा ऐसा हल्का, थोड़ा अच्छा, थोड़ा ऐसा लग रहा है, बढ़िया ऐसा अच्छा है, दुनिया कितनी अच्छी है. Yes or no? Yeah. Yes. See, this is the beauty of meditation, and this is something which we have offered to this whole world. This is like this is our heritage, the Indian heritage. This is of yoga, pranayams, meditation. Unfortunate बात क्या है, जब ये बाहर से वेस्ट होके स्टैंप लग के आया था तो बहुत कूल बन जाता है. Hot yoga, beer yoga, falana yoga, you know. But this is something we all need to really appreciate this. I'm walking in cloud. See, I'll tell you very simple example. Suppose you're all studying in Noida, no? Noida, Indrapuram. Yeah, Indrapuram. Now, suppose if you have to go from Indrapuram to Gurgaon at 6 p.m. in the evening by road, how much time it will take you on the peak of its traffic? How much time it will take you? Has anybody traveled from Indrapuram to Gurgaon evening? Can you show me how much time it will take you in hours? 1, 2, 3, like that you can show. Approximately 2.2, 2.5 depends on, yes or no? 2 घंटे तो 2.25 घंटे तो लगेंगे. Yes. Now if you have to go, मैंने स्पेशली बोला बाय रोड, स्मार्ट लोग हैं हमारे यहाँ पे, बाय मेट्रो. Yeah, बाय. Okay. Now if you have to travel from Indrapuram to Gurgaon at 1 a.m. at night, रात के 1 बजे जाना हो, कितना समय लगेगा? Around 45 to 1 hour maximum. Yes or no? Easily 40 minutes to 1 hour, depending आप कितने जांबाज हो गाड़ी चलाने में. है कि नहीं? Now, do you realize one thing? It is the distance is the same. Yes or no? Indirapuram to Gurgaon distance same है, but time change हो गया. क्यों time change हो गया? क्योंकि ट्रैफिक था और नहीं था. Do you agree on this? Yes or no? Now, do you also realize a similar situation happens in our mind also? Sometimes there is too much traffic, isn't it? And what it does, things get delayed. We take more time, efficiency drops down, focus goes haywire, emotions are all over the place, and you feel yaar kuch nahi ho raha, bakwas hai. Yes or no? Do you realize what I'm saying? But my question to you is, you cannot do this with the work, right? abhi nahi karenge, raat ke time kar lenge. But the way to reduce traffic is this thing which we did here, meditation. And we have a power to do this every single time. Yeah.
तो मैं एक बहुत ही सिंपल आपको एक चीज बताना चाहता हूं. देखो, हम 4 चीजों से मेजरली एनर्जी लेते हैं एज ह्यूमन बींग्स. एक खाने से, एक पीने से, पीने के टाइम पे सुन के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है. खाने से, पीने से, और सांस से, और एक शांत मन से. 4 सोर्सेस: फूड, स्लीप, breath, and a mind, calm mind. But if you'll notice, we only use the 2 sources, the sleep and the food, khana or sona, khana or sona. But we neglect the other 2, the breath and a meditative mind. Now, what is this? What is this like? You have 4 powerful engines in your car, but you're using only 2. What will happen? Speed will become less, the car will become slow. But if you activate 2 more sources of energy, you will be astonished with your own performance. You will be like, यार ये time जहां पे मैं 2 घंटा लेता था, आधे घंटे में खत्म हो रहा है. So for me as a person, so while I was doing my engineering, I was a person who was always an outstanding student. Outstanding मतलब क्लास से जो बाहर खड़ा रहता था. Outstanding वैसे वाला नहीं, मतलब you thought क्या रे भाई बड़े. Yeah, I was always, because I was my cricket captain, I was my basketball captain, I used to model for my college, I was involved in anything and everything except studies. That was really not my cup of tea, because I was forced into engineering. And because of that, my grades used to be always roaming around 45%, 46%, because 40% pass marks था. और 4% एक्स्ट्रा क्यों मिलते थे? क्योंकि प्रैक्टिकल में एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते ना थोड़े. थ्योरी में 40 ही आते थे, बाकी प्रैक्टिकल में थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते थे. And till 7 semesters. 7 semesters, the one time when I really learned, I was emotionally blackmailed to Art of Living. जबरदस्ती करके भेजा, क्योंकि मुझे लगता था मैं तो बहुत कूल हूं. तो ये कोर्स करने के बाद what happened? My 7th and 8th semester grades turned to be 75%. I applied for my Maharashtra CET entrance, which many of you must have also given, Maharashtra CET for MBA. I scored 97 percentile, and I studied only 15 days. I mean, that is the separate thing, that there is no negative marking, but still. Yeah. Okay. I was a person who was really a shy person. Not shy, but I was always had this fear of going on stage. I still remember in my 3rd semester, we had a subject called as communication skills. और उसमें मुझे एक 10 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी थी अपने फ्रेंड के साथ. मैंने वो प्रेजेंटेशन 30 सेकंड्स में खत्म की थी, मुझे अभी भी याद है. मैंने लोगों को देखा और मैंने बस ऐसा 5 कुछ बोला और आई जस्ट रैन अवे फ्रॉम स्टेज. मेरे बाल अपने आप स्पाइक्स बन चुके थे, मेरी शर्ट बाहर आ चुकी थी, और मुझे लगा मैं क्यों, व्हाई एम आई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दीज, ये राक्षसों के सामने क्यों खड़ा हूं मैं. एंड 2 years back, I was addressing the Parliament of Massachusetts in US. Yeah. So this shift, about on every level, whether it's communication, whether it's about confidence, about focus, this helped because I started practicing the techniques which I learned in the Art of Living course. We have this Yes Plus program, specially designed for an age group of 18 to 25, 27 types, which deals with only the issues or the challenges which a youngsters faces. Because we have a very different set of challenges from our parents, from different people. Yes or no? Agreed? And unfortunately, there is no practical way out or a solution which you can even talk to somebody. Because अगर आप बात करो लोग, अरे तुझे ऐसा हो रहा है क्या? You are suddenly judged. Yes? So we have designed a lot of tools, techniques in terms of activities, breathing techniques, games, which really allows you to kind of get over it in a very practical manner. So we'll be soon planning one for all of you guys. It's a 4-day program, cost 2,000 rupees. And I will say, whenever we come in terms decision with the college and looking in the dates, you should take a chance. It's really a mind-blowing workshop. Okay. So I am kind of done from my side.